Yes, so the next is meaning of enterprise. International transaction, transfer pricing, relevant provision of Income Tax Act is section 92F3. Yes, यहाँ पे डिफाइंड है कि एंटरप्राइज क्या है. एंटरप्राइज आप ये मान लीजिए कि नथिंग हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, एवरी एंटिटी इज एन एंटरप्राइज एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92F3. फिर भी अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं एंटरप्राइजेस की तो पढ़ लीजिए. एंटरप्राइजेस मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट ऑफ सच पर्सन. व्हाट इज़ अ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, डिटेल में आगे देखेंगे. परमानेंट स्टैब्लिशमेंट आप ये समझ सकते हैं कि एक जो है फॉरेन एंटिटी इंडिया में आई, दे हैव स्टार्टेड और हैज़ डन सम बिजनेस ऑपरेशंस in any form. They started generating revenue here in India. They started their operations here in India, and that setup is what we call as permanent establishment. Who is or has been or proposed to be engaged in any activity. See, the definition is any activity relating to. So the definition is open ended. So there is a scope to include more activities which are already mentioned in the definition itself, because here any is used and relating to is used, right? So the definition is open ended, so nobody can deny that my entity is not an enterprise as per the provisions or as per the definitions as prescribed in section 92F3. So the enterprise definition is a highly inclusive and open ended definition, includes relating to everything that an entity can do, or the provisions of service. All the services, all type of services that can be included has been included in that said definition. चाहे उसकी वो डिवीजन हो, ब्रांच हो, सब्सिडरी हो, यूनिट्स हो, लाइजन ऑफिस हो, बाय वॉट एवर नेम इज़ कॉल्ड, वेयर द एंटरप्राइज लोकेटेड और एट अ डिफरेंट प्लेस और प्लेसेस, चाहे वो एक ही प्लेस पर हो या डिफरेंट प्लेसेस पर हो. ऑल टुगेदर कंक्लूडिंगली, every business unit, every entity has been covered as an enterprise as per definition contained in section 92F3. Next is international transaction. What is international transaction as defined in section 92B subsection 1? This is very important to understand what international transaction is. A transaction between two or more associated enterprise. The transaction has to be between two or more. Yes. You cannot enter into any transaction with yourself. Yes, this is the natural accounting principle that we are studying from the childhood, कि आप खुद से transaction नहीं कर सकते हैं. There must be at least two persons or two entities to get involved in a transaction. So transaction between two or more associated enterprises, this is very important. There has to be associated enterprise. अगर transaction associated enterprise के बीच में नहीं है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगी, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर नहीं होगी. अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर associated enterprise का होना मस्ट है. दिस इज़ मस्ट. ईदर और बोथ ऑफ whom आर नॉन रेजिडेंट. अब उनमें से कोई भी एक एंटरप्राइज का नॉन रेजिडेंट होना कंपलसरी है. दोनों भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं. हाँ जी, दोनों नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं. अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का इंडियन इनकम टैक्स लॉ से क्या बियरिंग है, वो इंडियन इनकम टैक्स लॉ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है जब दोनों के दोनों एंटरप्राइजेस ही नॉन रेजिडेंट है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे के समझा देता हूँ कि अगर दो नॉन रेजिडेंट्स हैं और एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को कोई, मान लीजिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है, बट द लैंड एंड बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया, द अंडरलाइंग एसेट इज इन इंडिया, सो द टैक्सेबिलिटी will going to happen in India. तो वो दोनों नॉन रेजिडेंट्स भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं बट द अंडरलाइंग एसेट्स आर इन इंडिया, देन ऑल्सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. एंड ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सेल, परचेज, लीजिंग ऑफ टैंजिबल प्रॉपर्टी और सेल, परचेज, लीज ऑफ इंटैंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस और lending, borrowing of money, provision of service, lending, borrowing of money. Yes, the transaction is in the nature of, so the transaction part of the definition is inclusive, it is open ended. So it is not that कि जो mention है वही होगा तो international transaction होगी. No, it is not the case. Provision of service हो सकती है, lending, borrowing of money हो सकती है, any other transaction having bearing on profit, income or losses or assets of such enterprises, और कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी सीधी बियरिंग जो है वो प्रॉफिट से है, इनकम से है, लॉसेस से है, एसेट से है, ऑफ
सच एंटरप्राइजेस, उसको भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में होनी चाहिए, जिसमें एक नॉन रेजिडेंट होगा या फिर दोनों भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, और म्यूचुअल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज फॉर एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ऑफ और एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी कॉस्ट और एक्सपेंस इनकर्ड और टू बी इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बेनिफिट सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड टू एनी वन और मोर ऑफ सच एंटरप्राइजेस। हाँ जी, ये पॉइंट नंबर एफ क्या कहता है? पॉइंट नंबर एफ ये कहता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर एफ का मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूनिलीवर लिमिटेड, अ वेरी बिग कंपनी। यूनिलीवर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आयरलैंड। अब ये जितना भी इनका अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग फंक्शन है, उसकी टीम आयरलैंड में बैठती है और ये पूरी ट्रांजैक्शन जो इनकी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं उसको आयरलैंड में सर्वर्स हैं वहाँ से प्रोसेस करते हैं और पूरा कंसोलिडेशन जो है वो आयरलैंड में होता है। अब यहाँ पे एक यूनिट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस आयरलैंड में होने हैं, मान लीजिए उसमें कॉस्ट आनी है 500 मिलियन यूएसडी। अब ये जो कॉस्ट आ रही है सिर्फ आयरलैंड रिलेटेड एंटिटी की तो नहीं है, दिस नीड्स टू बी स्प्रेड ओवर अक्रॉस द एंटिटीज़ जिनकी प्रोसेसिंग आयरलैंड में होती है। फॉर एग्जांपल HUL में ये पार्ट एलोकेट होता है, लेट्स से 50 मिलियन यूएसडी। तो यहाँ पे जो यूनिलीवर लिमिटेड है वो इस पार्ट को, इस जो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो इंडिया में जो है कंपनी, वहाँ पे ये एक्सपेंस एलोकेट करेगी 50 मिलियन यूएसडी। इसकी बात करता है पॉइंट नंबर एफ। सो दिस ट्रांजैक्शन, दिस एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन between outside entity, foreign entity and Indian entity, that is just an allocation of expense. It is not that expense which has been borne by Indian entity, but that has been borne by this Ireland unit is doing the work. So HUL have to pay to the Ireland for the services which Ireland unit is doing on behalf of Hindustan Unilever Limited worth rupees 50 million USD. So this transaction is also categorized as international transaction as per provision of section 2B subsection 1 clause F. Deemed international transaction, हाँ जी, अब deemed international transaction क्या है? section 92B subsection 2 क्या कहता है? Wherein respect of a transaction entered into by an enterprise with a person other than an associated enterprises, hereinafter referred to as the other person, there exists a prior agreement in relation to the relevant transaction between the other person and the associated enterprises, or where the terms or the relevant transaction are determined in substance between such other person and the associated enterprises, and either the enterprise or the associated enterprise or both of them are non-resident, then such transaction entered into between the enterprise and the other person shall be deemed to be an international transaction entered into between two associated enterprises whether or not such other person is a non-resident. इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या बोलता है सेक्शन 92B सबसेक्शन 2। फॉर एग्जांपल, एक है ए लिमिटेड, एक है मिस्टर एक्स और एक है फॉर एग्जांपल CINC, राइट। अब ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को जो है वो गुड्स सप्लाई किए। मिस्टर एक्स और ए लिमिटेड जो हैं वो अनरिलेटेड पार्टीज़ हैं। अनरिलेटेड मीन्स दे आर नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ये लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं हैं। अब मिस्टर एक्स ने CINC को गुड्स सोल्ड किए। अब CINC जो है, CINC इज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ऑफ ए लिमिटेड, राइट। CINC एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है ए लिमिटेड की, राइट। दिस इज द कनेक्शन and business arrangement, they are associated enterprises.
इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी एज पर सेक्शन 92B सबसेक्शन 2, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एज पर सेक्शन 92B सबसेक्शन 2। हाँ जी, ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में फॉल होती है ये ट्रांजैक्शन। यस, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? एज पर सेक्शन 92F क्लॉज 5 ऑफ द एक्ट, ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स an arrangement, understanding or action in concert. What is concert? Concert is, you can say it could be a performance. Whether or not such arrangement, understanding or action is formal or in writing. Transaction की existence को prove करना कोई ज़रूरी नहीं है कि जो arrangement है, understanding है, action है वो formal हो या फिर वो writing में हो, वो informal भी हो सकता है और वो oral भी हो सकता है। Whether or not such arrangement, understanding or action is intended to be enforceable by legal proceedings. ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि जो अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग है उनके पीछे कोई लीगल बैकिंग हो, उनकी लीगैलिटी जो है वो प्रूव करने की रिक्वायरमेंट हो। दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन। एक जो ट्रांजैक्शन है वो एक अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, एक परफॉर्मेंस है जिसके लिए फॉर्मल एग्रीमेंट होना, राइटिंग में होना कोई कंपल्शन नहीं है, जिसकी लीगल बैकिंग होना भी इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। दिस इज़ व्हाट हाउ द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 92FV। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस जो है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन टैक्सेशन और इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉज, बट इसको फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ सेल्स एंड ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ एक्सपेंस इज ऑर्डिनरी रेवेन्यू न्यूट्रल इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये जो अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ सेल्स और ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ एक्सपेंस है दैट इज रेवेन्यू न्यूट्रल इन केस ऑफ टैरिफ एरिया, दैट इज इन केस ऑफ if India is a jurisdiction, tax jurisdiction, then it is revenue neutral. Let's understand it with an example. एक है A लिमिटेड और एक है B लिमिटेड, right? Now they are somewhere related or you can say they are associated enterprises. अभी A लिमिटेड ने B लिमिटेड को सेल किया, लेट्स से ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सेल किया 150 रुपीज़ में कोई गुड्स, राइट। बट अगर ये वाले गुड्स ए लिमिटेड किसी आउटसाइडर को बेचती, अगर अनरिलेटेड को ये सेल की जाती, तो दिस कुड हैव बीन सोल्ड एट ₹200। तो इस केस में क्या हुआ, ए लिमिटेड ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको सप्रेस किया बाय 50 रुपीज़, और जो भी इस पर टैक्स आना था, फॉर एग्जांपल 30% टैक्स रेट है तो 15% से टैक्स भी सप्रेस हो गया, राइट। अब इसको आप बी लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो बी लिमिटेड की जो कॉस्ट है, क्योंकि बी लिमिटेड की ये परचेज बनेगी तो परचेज प्राइस भी लो होगी, तो बी लिमिटेड की जो कॉस्ट है वो बनेगी 150 इंस्टेड ऑफ 200 रुपीज़। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो सप्रेस हो रही है बाय 50 रुपीज़, और टैक्स जो हैं वो 15 रुपीज़ से अननेसेसरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट सप्रेस होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। अब आप इसको देखें, यहाँ पे टैक्स सप्रेस हो रहा है 15 रुपीज़ से और यहाँ पे टैक्स अननेसेसरी हाइक हो रहा है 15 रुपीज़ से। सो दिस इज़ अ रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिया का जो टैक्स था वो इंडिया में ही है, उसकी चोरी हुई है, उसकी ए लिमिटेड ने चोरी की है, बट ऑन द अदर साइड बी लिमिटेड ने टैक्स भी तो ज़्यादा दिया है उतने ही अमाउंट से। सो यू कैन से दैट दिस ट्रांजैक्शन इज़ अ रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। सो दिस इज़ द केस ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। बट यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो जाती है कुछ केसेस में। अब वो कौन से केसेस हैं वो भी एक बार देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की, जिसमें जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की तरह टैक्स इवेजन का जो आस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व है। दो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ यूनिट ऑन विच टैक्स इज एप्लीकेबल टू टैक्स हॉलिडे यूनिट। इंडिया में कुछ टैक्स हॉलिडे यूनिट्स होती हैं जिनको टैक्स हॉलिडेज दिए जाते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो लोग जो है उनकी जो इंटेंशन है वो ये हो सकती है कि एक यूनिट जिस पर टैक्स एप्लीकेबल है उस पर उसका टैक्स उठा के शिफ्ट किया जाए उस यूनिट पे जो टैक्स हॉलिडे यूनिट है,
नेक्स्ट डोमेस्टिक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आती है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी टू लॉस मेकिंग एंटिटी। ये भी टैक्स इवेजन हो सकता है कि एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको उठा के शिफ्ट कर दिया जाए लॉस मेकिंग एंटिटी से, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉस गॉट एडजस्टेड एंड फाइनली जो है वो टैक्स आउटगो जो है वो कम आए। तो ये दो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जिनको हम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो टैक्स न्यूट्रल नहीं है फ्रॉम इंडियन टैक्स जुरिसडिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट टू अ टैक्स हॉलीडे यूनिट। दिस इज़ एक्चुअल सिचुएशन जो रियलिटी है, और उसके बाद हम बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स की, कि प्रॉफिट्स शिफ्ट होने से कितना टैक्स का लॉस हो सकता है। टैक्स हॉलीडे यूनिट पे टैक्स रेट जो है वो निल है, नो टैक्स इज एप्लीकेबल। डीटीए यूनिट जो डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट है उस पर नॉर्मली 30% टैक्स रेट है। इनकम फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं 100 रुपीज़ की, राइट, इसने सेल करी और दैट 100 रुपीज़ विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंस फॉर डीटीए यूनिट। अदर इनकम दोनों की बराबर है 300। अदर एक्सपेंस टैक्स हॉलीडे यूनिट के हैं 200 और डीटीए यूनिट के हैं 50। तो प्रॉफिट और लॉस टैक्स हॉलीडे यूनिट पे रिपोर्ट किया आपने 200 और डीटीए यूनिट पे रिपोर्ट किया 150 का, और यहाँ पे तो टैक्स जो है वो निल है, ज़ीरो, क्योंकि ये टैक्स हॉलीडे यूनिट है, देयर इज़ नो टैक्स एप्लीकेबल ऑन इट। डीटीए यूनिट पे जो है वो 45 रुपीज़ का टैक्स आएगा, एज्यूमिंग 30% एज टैक्स रेट, तो 45 यूनिट का डीटीए यूनिट पे टैक्स आएगा। दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन। अभी प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे होगी इस केस में देखते हैं। टैक्स यूनिट निल, यहाँ पे टैक्स रेट 30%। इनकम फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जो इनकम है, जो सेल है टैक्स हॉलीडे यूनिट को, वो 250 है, कॉरस्पॉन्डिंगली 250 इसकी यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये बन जाएगी। अदर इनकम जो है वो 300 दोनों में बराबर है। अदर एक्सपेंस 200 और 50 रुपीज़। अब यहाँ पे ये देखिए आप, टैक्स हॉलीडे यूनिट में इसको हाइक करके, टैक्स हॉलीडे यूनिट में इसको हाइक करके जो प्रॉफिट है वो 350 रुपीज़ का जनरेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो निल है। उसके बाद डीटीए यूनिट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो कर दिया गया इंटेंशनली इस कॉस्ट के आस्पेक्ट को हाइक करके, तो यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो ज़ीरो है। तो इस तरीके से जो है वो प्रॉफिट की शिफ्टिंग हुई फ्रॉम अ यूनिट विच इज़ अ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट टू अ टैक्स हॉलीडे यूनिट। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पे टैक्स शिफ्ट किया जाता है एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी से लॉस मेकिंग एंटिटी में। एक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं। दो कंपनीज हैं, लिमिटेड और XY लिमिटेड। टैक्स रेट दोनों में सिमिलर है 30%। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में AB लिमिटेड ने सेल करी है, इनकम जनरेट हुई 100 की, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इज़ हेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। दोनों की अदर इनकम बराबर है। अदर एक्सपेंस ABC लिमिटेड के 700 है और XYZ लिमिटेड के 50। तो ABC लिमिटेड जो है उसके लॉसेस हैं 300 के और XYZ लिमिटेड के 150 के प्रॉफिट्स हैं। 30% एज्यूमिंग टैक्स रेट, तो 45 रुपीज़ का XYZ लिमिटेड पे टैक्स बन जाता है। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। अब यहाँ पे टैक्स इवेजन जो है वो कैसे होगा, दैट्स वाई दिस ट्रांजैक्शन इज कैटेगराइज्ड एज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। इन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉज एप्लीकेबल हैं, यस, ताकि ये जो टैक्स इवेजन हो रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके, इसको रोका जा सके। अब टैक्स प्लानिंग टू शिफ्ट प्रॉफिट्स, अभी टैक्स प्लानिंग प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए कैसे होगी। टैक्स रेट दोनों में बराबर है। इनकम फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसको अननेसेसरली हाइक कर दिया गया यहाँ पे ABC लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, और ये कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी कॉस्ट बन गई यहाँ पे 250 रुपीज़। दोनों की अदर इनकम बराबर है। अदर एक्सपेंस यहाँ पे ABC लिमिटेड के 700 और XYZ लिमिटेड के 50 रुपीज़। अब यहाँ पे जो लॉस है वो बुक किया गया 150 का, राइट, और यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट होने थे 150 के, वो प्रॉफिट हो गए एक्सटिंग्विश, दैट इज़ डिमिनिश। सो द टैक्स लाइबिलिटी इज़ निल। जो टैक्स लाइबिलिटी आई है वो ज़ीरो पर आई है, राइट। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को, इस रेवेन्यू को अननेसेसरली हाइक करके इसकी कॉस्ट का पार्ट बना दिया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग यूनिट है, तो यहाँ पे तो टैक्स लाइबिलिटी आएगी नहीं। ये जो है प्रॉफिट मेकिंग यूनिट थी, बट इसकी कॉस्ट हाइक करके इसका प्रॉफिट ज़ीरो कर दिया गया है।
तो इन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग के जो लॉज हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं टू कर्व और टू आइडेंटिफाई एंड टू put control and checks on these kind of profit shiftings.